کو بتائیں سروسز چیفز کی مدت پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت اہم بلز کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اہم بلز پر دستخط کر کے گزشتہ رات منظوری دی تھی۔ آپ کو بتائیں سروسز چیفز کی مدت پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت بلز کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سروسز چیفز کی مدت پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت اہم بلز کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے بلز پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت دیگر کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ندیم چودھری سے مزید جانیں گے۔ ندیم بتائے گا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے؟ جی بالکل قانون سازی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سروسز چیفز کی مدت پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت اہم بلز کا گزٹ نوٹیفیکیشن سینٹ نے جاری کر دیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اہم بلز پر دستخط کر کے گزشتہ رات منظوری دی تھی۔ ندیم چودھری آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئے۔ ریٹائرمنٹ کی مدت ختم، 5 سال کی توسیع بھی دی جا سکے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا شدید احتجاج، بعض ارکان گتم گتا ہو گئے۔ اور سینٹ کے ہنگامہ خیز اجلاس، افواج پاکستان سے متعلق اہم قانون سازی، پاکستان آرمی ایکٹ 1952، ایئر فورس ایکٹ 1952 اور پاکستان نیو ایکٹ 1961 میں ترمیم کے بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے۔ Further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. The bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 stands introduced. نئی قانون سازی کے تحت آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ختم کر دی گئی۔ 5 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی کی جا سکے گی، جبکہ 5 سال تک توسیع بھی بل میں شامل۔ پاک فوج میں جنرل کے ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ ایئر فورس اور نیول ایکٹ میں ترمیم کے بعد ایئر یا نیول چیف کی مدت ملازمت بھی 5 سال ہو جائے گی۔ بل کے تحت ایئر چیف یا نیول چیف کی 5 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی، جبکہ توسیع بھی 5 سال تک کے لیے کی جا سکے گی۔ تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلے جنرل عاصم منی 2028 تک آرمی چیف رہیں گے۔ آرمی چیفز کی توسیع کے لیے پارلیمنٹ سے تائید کرانا پڑتی تھی، اب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا باب ختم ہو گیا۔ آپ کو بتائیں جنرل سید عاصم منیر 2028 تک آرمی چیف رہیں گے۔ وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے آرمی چیفز کی توسیع کے لیے پارلیمنٹ سے تائید کرنا پڑتی تھی، ایسا بتایا خواجہ آصف نے۔ اب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا باب ختم ہو گیا ہے۔ تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سارے منسٹر لائن حاضر تھے، ایک کے بعد ایک بل پاس کیا گیا، اپوزیشن کو بل پر اظہار خیال کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل کمیٹی میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی آئی اے کے نجکاری کے لیے ایک بڈر آیا اور 10 ارب کی بولی لگائی۔ کیا حکومت کو اپنی حیثیت کا پتہ لگ گیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے 2 سینئر ججز کا چیف جسٹس کو خط۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خط لکھ کر اسی ہفتے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی۔ کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہ ہوئی۔ دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلایا۔ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا 26ویں ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسی ہفتے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں۔
आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात भी हुई है, जिसमें बाहमिल दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रही हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद से मुतल्लिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात भी हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए मिडनाइट वोटिंग का आगाज हो गया। रियासत न्यू हैम्पशायर में मिडनाइट वोट कास्ट होना शुरू। बाकायदा पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। नेशनल गार्ड्स भी स्टैंड बाय पर हैं। इलेक्शन में कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। 47% वोटर्स ट्रंप, 48 कमला हैरिस के हामी। स्विंग रियासतों में ट्रंप कमला हैरिस को लीड कर रहे हैं। 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप, 2 में कमला हैरिस आगे। अमेरिका में मौजूद मुसलमानों में से 57% आबादी इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल। 26% मुसलमान वोट डालने के अहल नहीं, 15% वोट डालने से इनकारी। गजा और लेबनान जंग पर अमरीकी मौक़िफ़ के सबब मुसलमान बैलेट से दूर होने लगे। जनूबी एशियाई बरादरी में कमला हैरिस को पज़िराई हासिल। अरब कम्युनिटी में ट्रंप का असर व रसूख ज्यादा। पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। अपने हामियों से खिताब में ट्रंप का कहना था कि हम जौहरी जंग अजीम सोइम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर मुंतखब होकर जंग अजीम सोइम शुरू होने से रोकूंगा। अगर मैं सदर होता तो 7 अक्टूबर का वाकया कभी ना होता। मजीद कहा, सदर मुंतखब होकर मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, हमने हारना नहीं। अवाम व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए हमें वोट दें। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे, माइशत मजीद बेहतर बनाएंगे। इक़्तिदार में आकर जराइम पेशा अफराद का मुल्क से दाखिला बंद कर देंगे। मैक्सिको से आने वाले मुजरिमों का रास्ता रोकेंगे। हमारे दौर में अमेरिका की सरहदें महफूज थीं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस कहती हैं, आइंदा 24 घंटे में हम वोट डालने वाले हैं। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब में कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप दौर के खात्मे और नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। मेरे मंशूर में महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिब्बी सहूलियात देना है। अमरीकी इंतखाबात से कबल डॉलर की बेकदरी। अमरीकी डॉलर मुतादिद यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया। डॉलर यूरो के मुकाबले में 0.76% गिर गया। आलमी माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात का असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। सरमायाकार इंतखाबात से कबल एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले होंगे। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रही हैं, बिलावल भुट्टो की जानिब से इजलास तलब किया जाएगा। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया था। आबिदा खान से मजीद जानेंगे। आबिदा खान, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं? जी, ऐसा है कि इस तरह की खबर सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हुकूमत से नाराज नजर आते हैं और जराये का ये भी बताना है कि बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जो है जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। जराये का मजीद ये भी कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में
मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हुकूमत के साथ पीपीपी के मुस्तकबिल का जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें जो है अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। जी अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आबिदा खान, आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ाने और मुख्तलिफ बिल पास किए जाने का मामला पीटीआई और जेयूआई का एक बार फिर पार्टी सतह पर राबिता हुआ है। जराये के मुताबिक पीटीआई वफ़द चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सरबराही में जाएगा। आपको बताएं पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से और मुख्तलिफ बिल पास किए जाने का ये मामला है। आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई और जेयूआई का एक बार फिर पार्टी सतह पर राबिता हो गया है। आपको बताएं पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ाने और मुख्तलिफ बिल पास किए जाने का मामला ज़ेर गौर है। एमक्यूएम मरकज 90 से धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस। एमक्यूएम के 12 अहलकारों और कारकुनान की बरियत के खिलाफ अपीलें मंजूर। सिंध हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बताएं एमक्यूएम मरकज 90 से धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामदगी का ये केस है। एमक्यूएम के 12 कारकुनों की बरियत के खिलाफ अपीलें मंजूर की गई हैं। आपको बताएं एमक्यूएम मरकज 90 से धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामदगी का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एमक्यूएम मरकज 90 से धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामदगी का ये केस है। एमक्यूएम के 12 कारकुनों की बरियत के खिलाफ अपीलें मंजूर की गई हैं। अली हसन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली, बताइएगा, अपीलें मंजूर कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम के मरकज 90 से धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला बरामदगी केस में एमक्यूएम के 12 कारकुनों की बरियत के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जानिब से अपीलें जमा करवाई गई थी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौका इख्तियार किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहम नुकात और शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजिमान से 90 पर रेंजर छापे के बाद धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला बरामद हुआ था। इस केस में शरीक मुलजिमान जो थे उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई थी और इनकी जो अपीलें सिंध हाई कोर्ट में आई थी उस पर भी सिंध हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी थी, जबकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी मौका इख्तियार किया गया कि मज़कूरा मुलजिमान को भी शवाहिद के मुताबिक सजा दी जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। अली हसन अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, नकीबुल्ला कत्ल केस में नामजद साबिक एसएचओ सचल शेख मोहम्मद शुएब उर्फ शूटर की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। मकवी के अहले खाना की अदालत में बोलने की कोशिश। अदालत ने कहा, आप खामोश हो जाएं वरना हम केस नहीं सुनेंगे। अगर मुलजिम को जेल में रखने से आपका बंदा बाजियाब हो जाता है तो हम मुलजिम को जेल में रखेंगे। अदालत ने एसएसपी शर्की को मकवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने थाना मुबैना टाउन से केस में होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें। नकीबुल्ला कत्ल केस में नामजद सचल शेख मोहम्मद दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। मुगवी के अहले खाना की अदालत में बोलने की कोशिश। आपको इस हवाले से बताएं कि आप खामोश हो जाएं वरना हम केस नहीं सुनेंगे। अदालत की जानिब से ये कहा गया। अदालत ने केस में होने वाली पेशरफ्त की रिपोर्ट को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में आगरा ताज कॉलोनी लियारी में 8 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत का 100 गज के प्लॉट पर 8 मंजिला इमारत की तामीरात पर इजहार हैरत, क्या ये लियारी में तामीरात हो रही हैं? जस्टिस जफर अहमद राजपूत का इस्तफसार। अदालत ने एसपीसीए, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालत के एसपीसीए, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने आगरा ताज कॉलोनी लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस पर समाअत की है। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास जारी है। इजलास में नेट हाइड्रल प्रॉफिट का तस्करा हुआ। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बताया जाए कि नेट हाइड्रल के बकायाजात की क्या सूरत हाल है। वजारत तवानाई हुकाम ने बताया कि पी हुकूमत को नेट हाइड्रल प्रॉफिट की मद में माहाना 2 से 3 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। एजीएन काजी फार्मूले के तहत केपीके 20 से 24 अरब रुपए के बकायाजात हैं। कमेटी ने वाबदा हुकाम को केपीके हुकूमत के साथ मिल बैठकर मसला हल करने की सिफारिश कर दी है। आपको बताएं कि इजलास में नेट हाइडल प्रॉफिट का तस्करा हुआ। आपको ये भी बताते चलें कि बताया जाए कि नेट हाइडल के बकायाजात की क्या सूरत हाल है। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया कि पी हुकूमत को प्रॉफिट की मद में माहाना 2 से 3 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी बराए तवानाई का ये इजलास
इजलास जारी। इजलास में नेट हाइडल प्रॉफिट का तस्करा हुआ। एफबीआर को पहली सहमाही के बाद दूसरी सहमाही में भी शॉर्टफॉल का इम्कान है। इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक एफबीआर का अक्टूबर ta दिसंबर 230 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। जराये के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल से निमटने के लिए कलील और तवील मुद्दती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 10.8 अरब रुपए इजाफा हासिल होंगे। आपको बता रहे हैं, इस खबर से मुतल्लिक अपडेट करेंगे। एफबीआर को पहली सामाही के बाद दूसरी सामाही में भी शॉर्टफॉल का इम्कान है। एफबीआर का अक्टूबर ta दिसंबर 230 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। महकमा तालीम सिंध में 1 से 20 ग्रेड की खाली आसामियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। महकमा स्कूल तालीम के मातहत 21 इदारों से तफसीलात तलब की गई हैं। इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर लिटरेसी, नॉन फॉर्मल, डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चीफ इंजीनियर तालीम वर्क्स एंड सर्विसेज से भी खाली आसामियों की तफसीलात मांग ली गई हैं। आबदा खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आबदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध में 1 से 20 ग्रेड की जो खाली असामियां हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई है। महकमा स्कूल तालीम के मातहत 21 इदारों से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन, डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग और डायरेक्टर के असेसमेंट को भी खतरसाल कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर लिटरेसी और नॉन फॉर्मल को भी खतरसाल कर दिया गया और तमाम डिविजनल के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भी कर दिया गया है। आबिदा खान इस हवाले से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आईनी तरमीम के वक्त रूपोश रहने के बाद कौमी असम्बली में वोट देने वाले औरंगजेब किच्ची ने पीटीआई क़यादत पर इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है, ये मुझे दाद दें। इस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया। यहाँ कहा गया मैंने पैसे वसूल किए हैं, अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। यहाँ कहा गया कि मैं पैसे वसूल किए हैं, अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। औरंगजेब खिची की जानिब से कहा गया हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है। औरंगजेब खिची की जानिब से कहा गया ये मुझे दाद दें, इस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था। यहाँ कहा गया कि मैंने पैसे वसूल किए हैं। औरंगजेब खिची की जानिब से कहा गया, उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। अपने घर के ख्वाब की ताबीर मिल गई। अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज्यादा दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल कर दी गई। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। प्रोग्राम के तहत बेशतर घर तकमील के करीब पहुंच गए। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत की। दरख्वास्त दहिंदगान को वज़ीर आला की जानिब से मुबारकबाद का खत भी देंगे। मरीम नवाज का कहना था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं।